سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو وحدہ لا شریک ہے، نہ کوئی ثانی ہے نہ کوئی ہمسر ہے۔ درود لامحدود محبوب رب الودود، راحت العاشقین مراد المشتاقین حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر ضرمن۔ آپ دیکھ رہے ہیں الف لام میم، میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی تہہ دل سے آپ کو کہتا ہوں خوش آمدید۔ قیامت ایک حقیقت ہے، ہم جس وقت کی طرف جا رہے ہیں اسے ٹھہرنا ہے، رکنا ہے، اور اس کے بعد مردوں کا جی اٹھنا ہے، اس کے بعد محشور کیے جانا ہے، حساب و کتاب بھی ہونا ہے۔ اس پہ کم و بیش تمام ہی ادیان، تمام مذاہب اتفاق کرتے ہیں۔ جب وہ اتفاق کرتے ہیں تو پھر اس بات سے بھی اتفاق کریں کہ وہ آ رہی ہے کن کیفیات کے ساتھ آ رہی ہے، آنے کے بعد، آنے سے پہلے اپنے ساتھ کون سے مناظر لے کر آ رہی ہے، کون سے ایسے پیشواں ہیں کہ جن کے ساتھ جڑنا ضروری ہے، کون سی ایسی پیشن گوئیاں ہیں جو بیان کر دی گئی ہیں، کون سی ایسی نشانیاں ہیں جو ہو چکی ہیں، اور کون سی ایسی علامات ہیں جو ہونے والی ہیں۔ میں آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں۔ آج کے اس پروگرام میں تشریف فرمائیں، عالم اسلام میں بہت ہی خوبصورت چہرہ رکھتے ہیں، اتفاق اور اتحاد کی فضا قائم رہتی ہے۔ خوش آمدید کرنا چاہتا ہوں علامہ امین شہیدی کو، اور ان کے بالکل ساتھ تشریف فرمائیں ہمارے پیارے دوست، ہندو کمیونٹی سے ان کا تعلق ہے، اسکالر ہیں اور سناتن دھرم کا پرچار کرتے ہیں اتفاق اور اتحاد کے ساتھ۔ منوج چوہان صاحب کو خوش آمدید کرنا چاہتا ہوں، اور ہمارے آج کے تیسرے مہمان، آپ سے تو محبت اور مودت کی مہک آتی ہے، گفتگو فرماتے ہیں اعتدال کے ساتھ، اتفاق اور تحقیق کے ساتھ، مفتی نوید عباسی کو خوش آمدید کہوں گا۔ اور آج کے ہمارے چوتھے مہمان، کرسچن کمیونٹی سے آپ کا تعلق ہے، پاکستانیت بھی ان میں بھرپور ہے، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے محبت ظاہر ان کا خاصہ ہے، اور اپنے مذہب کی بہترین نمائندگی فرماتے ہیں بشپ خادم بھٹو صاحب۔ میں آپ کو بھی خوش آمدید کرنا چاہتا ہوں۔ میں گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں اور علامہ صاحب سے جاننا چاہتا ہوں، تصور قیامت، جہاں مختلف ادیان ظاہر اس بات کا اقبال کرتے ہیں اور جانتے ہیں یہ حقیقت ہے، وہاں پر دو چیزیں بڑی علاماتی طور سے واضح ہیں۔ ایک عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، کیا وہ آسمان سے نازل ہوں گے، اور پھر حضرت امام مہدی کا ہونا، ان دونوں کا باہمی رشتہ کیسا ہوگا، کتنے سال کا فاصلہ ہے، اور پھر حاکم کون ہے، وزیر کون ہے، یہ معاملہ چلے گا کیسے علامہ صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپریشیٹ کرتا ہوں آپ کے اس پروگرام کو اور اس مضمون اور موضوع کو، بڑا اچھا موضوع ہے، لیکن میرا خیال ہے اس میں بڑی گہرائی اور تفصیل کی ضرورت ہے، اس لیے ایک آدھے اور پونے گھنٹے کے پروگرام سے اس کا حق ادا نہیں ہوتا۔ اس کے تمام پہلوؤں پر بڑی تفصیل سے گفتگو کی ضرورت ہے، اور اس گفتگو میں یقیناً بائبل سے بھی بھرپور استفادہ ہونا چاہیے، اور اسی طرح سے دیگر آسمانی جو کتابیں ہیں ان سے بھی، اور قرآن کریم جو آخری کتاب ہے اس سے بھی بھرپور استفادہ ہونا چاہیے، تب جا کر بالکل بات واضح ہو جائے گی۔ اس بات میں الہی ادیان میں اشتراک ہے کہ حضرت عیسیٰ مسیح تشریف لائیں گے، حتیٰ ہمارے مسیحی بھائی بھی یہی عقیدہ رکھتے ہیں، اور قیامت کے تصور کے حوالے سے بھی الہی ادیان میں یہ ایک مشترکہ موضوع ہے کہ انسان کو اگر اس دنیا میں بھیجا گیا ہے تو اس دنیا میں بھیجے جانے کے بعد اس کے تمام تر اعمال، چاہے وہ برے ہوں یا اچھے ہوں، ان کا اس سے حساب لیا جائے گا۔ اب قیامت سے پہلے کے جو واقعات ہیں اس کا تصور ضروری ہے اور اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ دیکھیے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سارا عالم خلق کیا ہے تو عبث اور بیہودہ تو خلق نہیں کیا۔ قرآن کریم میں اس کے لیے جو باتیں بیان کی گئی ہیں وہ یہ ہے کہ قیامت سے پہلے ایک دور ایسا آئے گا جب زمین پر اللہ کے صالح بندوں کی حکومت ہوگی، اور اس حکومت کے اندر ظلم کا اس انسانی معاشرے سے خاتمہ ہو جائے گا۔ اللہ کے وہ بندے جو مستضعف تھے، جو کمزور کر دیے گئے تھے، جن پر ظلم کیا گیا تھا، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ پورے عالم کی حکومت عطا کرے گا، اور اس کے بعد پھر ان آیات، اس طرح کی چونکہ متعدد آیات ہیں، میں مختصر کرنا چاہ رہا ہوں، ان متعدد آیات کا خلاصہ پھر حدیث نے بیان کیا ہے، اور حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے، اور یہ حدیث شیعہ اور سنی دونوں کتابوں میں منقول ہے، اور اس کی صحت پر تمام محدثین نے مہر تثبیت لگائی ہے، اور وہ یہ ہے کہ امام مہدی آخر الزمان علیہ السلام کا جب ظہور ہوگا تو اس ظہور کے ساتھ ایک نئی حکومت کی داغ بیل ڈالی جائے گی، جو صالحین کی حکومت ہوگی پورے عالم کے اندر، اور اس میں یملأ اللہ بہ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا کا جملہ ملتا ہے کہ ان کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ زمین کو عدل سے اور انصاف سے بھر دے گا، اسی طرح جس طرح ان کے آنے سے پہلے ظلم اور
जोर से दुनिया भरी होगी। तो इस जुमले से एक बात और भी वाज़ेह होती है कि जब उनके आने से पहले पूरे आलम में जुल्म होगा तो जुल्म निज़ामों की तरफ से होगा, इंसान मजलूम होंगे। अच्छा, जब इंसान मजलूम होंगे और वो जो निजामात हाकिम हैं दुनिया पर, उन निजामों की तरफ से जुल्म होगा, तो अवाम के अंदर ऐसा नहीं है कि हर इंसान फासिद होगा, हर इंसान जालिम होगा, हर इंसान ऐसा नहीं है, बल्कि उनमें अच्छे लोग भी होंगे, बुरे लोग भी होंगे, लेकिन अच्छे भी पिस रहे होंगे, बुरे भी पिस रहे होंगे, और पीसने वाले वो निजाम के हाकिम होंगे। रहनुमा मन जानिब खुदा होगा ना, ये बात जानिब अल्लाह होगा। अब जब ये प्रोसेस होगा तो इसमें आपका चूंकि सवाल अभी कंप्लीट नहीं हुआ, इस अरसे में जब हजरत ईसा मसीह अलैहिस्सलाम, हजरत महदी आखिर ज़मां तशरीफ लाएंगे, तो हमारी यानी इस्लामी रिवायात में शिया सुन्नी दोनों के अंदर ये रिवायत मौजूद है, एक नहीं है, मुतअद्दिद रिवायात है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जमीन पर उतरेंगे। अच्छा, जब वो जमीन पर उतरेंगे तो बैतुल मक़दस की सरजमीन पर उतरेंगे। अच्छा, बैतुल मक़दस में जब आप तशरीफ लाएंगे तो इमाम महदी अलैहिस्सलाम आपका इस्तकबाल करेंगे, सही, आप इकट्ठे होंगे। उसके बाद फिर इमामत की बारी आएगी नमाज के हवाले से। उस नमाज की इमामत में हजरत महदी आखिर ज़मां हजरत ईसा के आगे खड़े होंगे और हजरत ईसा मसीह हजरत इमाम महदी के पीछे खड़े होंगे, और इस तरह से वो नमाज अदा की जाएगी अल्लाह की बारगाह में। तो उसके बाद फिर क्रिश्चियन, मुस्लिम, यानी वो इलाही अदियान के हामिल लोग जो एक अल्लाह पर और एक क़यामत पर यकीन रखते हैं, वो सब इस इमाम की इमामत में इकट्ठे होंगे और फिर दुनिया में अदल की जिद्दोजहद का सिलसिला वहां से शुरू। ठीक है, अल्लामा साहब आपकी बात को रिलेट करता हूँ, बिशप खातिम भुट्टो साहब की तरफ आना चाहता हूँ और ये जानना चाहता हूँ कि जैसे ही अल्लामा साहब ने फरमाया कि ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल हो रहा है, एक तो ये बात बताते हैं किस मकाम पे हो रहा है, क्या इस बात से इत्तफाक बैतुल मक़दस में हो रहा है या इसके अलावा कोई और जगह है, तो बयान फरमा दें। और फिर क्या आपकी कुतुब में इसके आगे की किस्से, रिवायात, पेशनगोइयाँ की गई हैं? सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि एक बहुत अच्छा मौजू जो है वो आपने दिया है, और जैसे अल्लामा साहब ने कहा कि टाइम जो है ये वाक़या ही बहुत कम है, क्योंकि ये कोई छोटा टॉपिक नहीं है, और मेरे ख़्याल में आप कई इसके जो है प्रोग्राम कर चुके हैं। सबसे पहले तो मैं जो क़यामत है उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि क़यामत एक्चुअली है क्या चीज़। टाइम का ही मसला है उसमें भी। ठीक है, क़यामत का जो मतलब है टाइम ही रुक जाएगा सारा। जी, उसके माने हैं मुर्दों का जिंदा किया जाना, यानी कि ज़िंदगी का वापस आना इज्तिमाई तौर से। ठीक है, क्योंकि बाइबल मुक़द्दस में लिखा है कि जब रोज़े क़यामत होगा तो हर शख्स जो है जो अपनी ज़िंदगी से जा चुका है उसको ज़िंदा किया जाएगा। अच्छा, ठीक है, वो जिस्मानी तौर पे तो ज़िंदा नहीं होगा, लेकिन एक जलाली बदन होगा जिसे हम रूहानी बदन कह सकते हैं। अच्छा, उस बदन के तहत जो है वो ज़िंदा किया जाएगा ताकि उनका जो रोज़े हिसाब है वो किया जा सके। अच्छा, ये एक पॉइंट है जो नोट किया जा सकता है। सही, क्योंकि अदालत उन लोगों की जाती है जो सामने यानी कि मौजूद हों, और फिर उनका बताया जाए कि ये आपने इस ज़िंदगी में ये गुनाह किए हैं, ये नेकियां की हैं, और फिर तब जाके उनको वो जो नेक लोग हैं उनका हिसाब हो जाएगा, जो बदकार हैं या जिन्होंने ज़िंदगी अच्छी नहीं गुजारी है उनका भी हिसाब होगा। फिर क़यामत के माने लिखे हैं कायम होना, खड़े होना। जी, ठीक है, इस्तदादा होना। सही है। रोज़े हशर जो है यौमुल हिसाब। सही है। और मर कर जी उठना या दोबारा जिंदे होने का दिन जो है उसे क़यामत कहा गया है। फिर इसे यौम आखरत भी कहा गया है, रोज़े महशर और रोज़े हशर भी कहा गया है, यौम बाज़ पुरस भी कहा गया है। अच्छा, और रोज़े शुमार भी कहा गया है, ताकि सब लोग जो ज़िंदा हैं या मुर्दा हैं, क्योंकि लाजमी बात है कि सब तो नहीं मरे होंगे, लेकिन कम अज़ कम जो मर चुके हैं उनको ज़िंदा किया जाएगा, और जो ज़िंदा होंगे उनका भी हिसाब किया जाएगा। उनको मारा जाएगा? नहीं, वो उनका ऐसे ही हिसाब होगा जब वो ज़िंदा होंगे। अच्छा, हाँ, ठीक है। मारा नहीं जाएगा, लेकिन जो जिंदा हैं उनका भी हिसाब होगा। ठीक है। जो मर चुके हैं उनको जिंदा करके जो है उनका हिसाब किया जाएगा। ठीक है। और यही जो है वो इख्तिताम आलम होगा। हाँ, ठीक है। बाइबल मुक़द्दस में इसकी बहुत सारी निशानियां हैं, गवाहियाँ हैं, और हज़रत
दानियल नबी ने सबसे पहले जो है वो रोज़े अशर की जो है पेशनगोई की सही। कि बहुत सारे लोग जो हैं वो एक फ़रिश्ता आएगा और वो फ़रिश्ता जो है वो उस दुनिया को जो है ख़त्म करेगा। अच्छा। फिर कलाम मुक़द्दस मकाशफ़ा की किताब जो कि हमारी नबूवत की किताब है उसमें 7 फ़रिश्तों का ज़िक्र है हाँ। कि 7 फ़रिश्ते जो हैं वो बारी बारी बरपा होंगे अच्छा। और ये हुज़ूर यीशु अल मसीह के आने से पहले के वाक़यात हैं। आपसे पहले आ रहे हैं ये? हाँ, वो पहले आएंगे आपसे, अच्छा। ठीक है। और यानी वो आपकी जो सेकंड कमिंग है उससे पहले हाँ, सात उससे फरिश्ते आ रहे हैं। उससे पहले का वाक़यात हैं। अच्छा। वो 7 फरिश्ते जो हैं वो इस दुनिया को जो है वो तबाह बर्बाद करते रहेंगे और एक वक्त ऐसा भी आएगा कि ये जो दुनिया है वो तारीक हो जाएगी और रोशनी देना बंद हो जाएगी। अच्छा। और कलाम मुक़द्दस में हुज़ूर यीशु अल मसीह के मगर हमें तो पता नहीं, फरिश्ते ही बर्बाद कर रहे हैं हमें। हम तो उनको बड़ा शैतान समझ रहे थे जो बर्बाद कर रहे हैं, सारा निज़ाम खराब कर रहे हैं। शैतान फरिश्ते अलग हैं, लेकिन जो खुदा की तरफ से एक दिन जो है जिसे रोज़े आखिर कहते हैं हम, हाँ। उसकी निशानियां जो हैं वो बताई गई हैं और उससे पहले जो है वो लोगों को जो है कम अज़ कम, अब जैसे आप कोरोना वायरस ले लें हाँ हाँ। तो ये भी एक आखिरत की निशानी है क्योंकि यानी आप कह रहे हैं कि फरिश्ते ने फैलाई है? नहीं, फरिश्ते ने नहीं फैलाई, मैं ये नहीं कह रहा कि फरिश्ते ने फैलाई है, लेकिन कम अज़ कम हम आखिरत की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है। ये वो दौर है क्योंकि इसमें आपको पता है कि कई लाखों लोग जो है वो अपनी जान से चले गए ठीक हैं है। और ये वबा जो है वो हम खुदा ताला की तरफ से कह सकते हैं, किसी इंसान की तरफ से नहीं कह सकते। ठीक है, मगर बिशप साहब की इस गुफ्तगू से बहुत सारे सवालात पैदा होते हैं जो मैं वफ़े के बाद पूछने लगा हूँ। कोरोना टाइप की बलाएं वबाएं इससे पहले भी आई हैं, इससे पहले भी लोगों ने कहा है कि ये क़यामत की निशानी है, तो वो निशानियां पहले इतनी सारी आ चुकी हैं कि अब निशानी लग भी नहीं रही है। 2017 में भी था ये। उससे पहले भी सदियों में आया। हाँ। अच्छा, मैं वापसी आऊँगा वफ़े के बाद और मैं ये सवाल पूछूंगा यकीनी तौर से, और साथ साथ ये भी पूछूंगा कि क़यामत में और रोज़े महशर में कोई फ़र्क है या ये एक ही दिन का सारा हिस्ट्री और रिकॉर्ड है और फ्यूचर है? मैं अलिफ लाम मीम में आपका मुंतज़िर हूँ। अलिफ लाम मीम में खुश आमदीद कहता हूँ। क़यामत के हवाले से बात हो रही है और उससे कबल होने वाले वाक़यात जो रोनमा होंगे एक हकीकत है, सब इससे इत्तफ़ाक़ करते हैं और यहाँ पे मुख्तलिफ मज़ाहिब के नुमाइंदगान तशरीफ़ फरमाएँ और मैं आलम इस्लाम की ज़ाहिर एक ऐसी निगाह रखना चाहता हूँ इस हवाले से कि उसके पास इन सवालात के क्या जवाबात हैं। मुफ्ती नवेद अब्बासी साहब तशरीफ़ फरमाएँ। इससे पहले बिशप साहब ने भी फरमाया, अल्लामा साहब ने एक और तरफ हमारी तवज्जो दिलाई कि क़यामत का असल में मफ़हूम क्या है, ज़रूरत क्या है। मगर बिशप साहब की गुफ्तगू से 3-4 सवालात पैदा हुए, मैं जानना चाहता हूँ उसको इस्लाम से रिलेट करूँ। एक तो ये कि क़यामत और उसके बाद महशूर होना, ये दो अलग अलग इवेंट्स हैं, ये एक ही इवेंट है। दूसरा ये कि वो जो महशूर हो रहे हैं वो रूहानी हशर है या जिस्मानी हशर है, और साथ साथ ये कि ईसा अलैहिस्सलाम 1000 साल के लिए निज़ाम हुकूमत लेकर आ रहे हैं या बस आ रहे हैं। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जज़ाकल्लाह। गुजारिश ये है कि कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद ने इरशाद फरमाया, कैफ़ तकफ़ुरून बिल्लाहि व कुंतुम अमवातन फ़अहयाकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम सुम्मा इलैहि तुरजाऊन। कुरान हमें ये बात इरशाद फरमा रहा है कि तुम कैसे इनकार कर सकते हो अल्लाह रब्बुल आलमीन का, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम कुछ नहीं थे, तुम्हें हयात दी, इस हयात के बाद मौत देगा, सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम, फिर तुम्हें ज़िंदा करेगा, सुम्मा इलैहि तुरजाऊन, फिर तुम उसकी तरफ लुटाए जाओगे। इस्लाम का जो नज़रिया है वो ये कि क़यामत से पहले ये सारा निज़ाम कायनात ख़त्म हो जाएगा, ये आसमान, ये चाँद, ये सूरज, ये फ़लक, ये पूरा निज़ाम ख़त्म होगा। और इस निज़ाम के ख़त्म होने के बाद जब परवरदिगार चाहेगा फिर से वो एक मैदान लगाकर, एक जगह कायम करके जहाँ जन्नत जहन्नम सारी चीज़ें मौजूद होंगी, वहाँ इंसानियत को ज़िंदा करके जमा किया जाएगा। और इससे पहले परवरदिगार ये फरमाएगा, लिमनिल मुल्कुल यौम, कोई आवाज़ नहीं आएगी, फिर आवाज़ आएगी लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, आज उसी की हुकूमत है। ये बड़े बड़े जो सर फिरे लोग थे, जो अपने आप को बादशाह समझते थे, जो कहते थे कि हम सबसे बड़े बादशाह हैं, वो सारे के सारे ख़त्म हो जाएंगे, कोई बाकी नहीं रहेगा जी, सब ख़त्म हो जाएगा। फिर उसके बाद जब परवरदिगार चाहेगा तो फिर उसके बाद जो है वो हिसाब किताब का सिलसिला शुरू होगा, फिर जन्नत है, फिर जहन्नम है। लेकिन ये बात ज़हन नशीन रहे कि
ایک تو موت کا معاملہ یہ اسلام میں سب کے لیے ہے، صرف پروردگار باقی ہوگا، باقی ہر چیز کو فنا ہے، اچھا ٹھیک ہے، بقا صرف اللہ رب العالمین کی ذات کو ہے۔ صحیح۔ اور دوسری بات جو آپ نے توجہ دلائی وہ یہ ہے کہ دیکھیے قیامت سے پہلے جو قرب قیامت کی نشانیاں ہیں، ایک علامات صغرا ہیں اور ایک کبرا ہیں، یعنی چھوٹی اور بڑی نشانیاں۔ چھوٹی نشانیوں کا ظہور ہو رہا ہے، اور قیامت کی جو سب سے بڑی نشانی ہے وہ میں آپ کو عرض کروں وہ یہ کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کا اس بزم امکان میں تشریف لانا یہ بڑی نشانی ہے۔ پھر حضور علیہ السلام نے جو نشانیاں بتائی وہ نشانیاں وہ ہیں کہ زمین کا چاروں کونوں سے دھنس جانا اور دابت الارض کا نکلنا، اور اس کے علاوہ دیگر نشانیاں، اور پھر خاص طور پر سیدنا حضرت امام مہدی کا آنا اور سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے زمین پر نزول کرنا۔ یہ باتیں ہیں جو باتیں قبلہ یہ ہمارے جو ہے نا وہ بشپ صاحب فرما رہے ہیں، وہ جو میری معلومات ہیں، جو میں ان کے مذہب کو تھوڑا بہت جانتا ہوں، یعنی جو عہد نامہ عتیق ہے جو پرانا ہے یہ جدید ہے، یا انجیل برناباس ظاہر ہے اس کو وہ قبول نہیں کریں گے، لیکن یوحنا متی مرقس اس کے حساب سے جو میں نے تھوڑا بہت مطالعہ کر رکھا ہے، مجھے کچھ ایک دو باتیں اس حوالے سے دستیاب نہیں ہو پائی۔ ان کے ہاں بھی غالباً یہ تصور ہے جو میرے مطالعے میں ہے کہ ساری انسانیت ختم ہو جائے گی، لیکن ظاہر ہے وہ ان کا ایک نقطہ ہے، وہ اس کو جو ہے وہ بیان کریں، تو اگر وہ دلیل سے بات کریں گے، وہ اپنی کتاب سے ظاہر ہے وہ میری بات تو قبول نہیں کریں گے، اور میں ڈنڈا لے کے اپنی بات قبول کرانے سے رہا، اور یہ جو ہے نا وہ علمی دنیا کا طریقہ نہیں ہے، وہ اپنی کتاب سے بات کریں گے اور ہم ان سے ان کی کتاب سے بات کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن میری نظر سے یہ چیز گزری نہیں ہے۔ اور جہاں تک آپ نے ملائکہ کے حوالے سے بات کی، دیکھیے ملائکہ جو ہے نا جو نورانی مخلوق ہے اس کے حوالے سے ہم قطعاً یہ تصور نہیں کر سکتے کہ ان میں کوئی بدرو ہے یا کوئی ان میں بد ہے۔ جو نوری مخلوق ہے وہ اللہ کا ذکر کرتی ہے صبح و شام، اور وہ پروردگار کی حکم کے پابند ہیں۔ ہاں وہ لوگ جو ملائکہ کی صف میں شامل ہوئے پھر لعین قرار دیے گئے جیسے شیطان اور ذریت شیطان، وہ جنات میں سے، لیکن وہ قرآن مجید فرقان حمید کی بعد آیات یہ اشارہ دیتی ہیں کہ وہ فرشتوں میں شامل ہوا، بلکہ فرشتوں کی نگرانی کرنے لگا، تو پھر بعد میں اس کو غرور تکبر کی وجہ سے نکال دیا گیا، تو ان کو ہم فرشتوں میں قطعاً شامل نہیں کر سکتے۔ فرشتے جو ہے وہ ایک نوری مخلوق ہیں، اور ان کے حوالے سے ہمارا یہ عقیدہ اور یہ نظریہ ہے کہ فرشتے وہ معصوم ہوا کرتے ہیں۔ جیسے دجال ایک ولن ہی ہے نا، کہ اینٹی کرائسٹ جسے ہم کہتے ہیں، وہ ایک ہی ہے، یا اس کے ساتھ اور بھی ایسے کو ولنز ہیں جن کو اگر آپ مینشن کرتے تو مجھے لیکن یہ میں یا قبلہ کی بات سے آپ کے وہ صرف ایک سیکنڈ کے لیے عرض کروں گا، وہ یہ کہ قیامت میں صرف روحانی جسم نہیں ہوں گے یا روحیں نہیں ہوں گی، جسمانی ہیں، بلکہ جسم کے ساتھ ہم موجود ہیں۔ ایسا ہی علامہ صاحب آپ بھی سے اتفاق کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا وہ قیامت کے حوالے سے جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جو اللہ عدم سے وجود میں انسان کو لا سکتا ہے، وہ اسی انسان کے اجزائے بدن کے فنا ہونے کے بعد دوبارہ اس کو حیات دے سکتا ہے۔ جی، تو اس لیے یہ تصور تو خیر قرآنی تصور ہے، وہ ان کا نقطہ نظر ہے۔ ٹھیک ہے، بالکل بالکل اس میں آزادی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ دیکھیں جہاں تک دجال کا تعلق ہے، دجال پر میں آپ کو دعوت دوں گا، عرض کروں گا، گزارش کروں گا کہ ایک پروگرام رکھیں مستقل، ٹھیک ہے، اور اس پر تمام جو مکاتب فکر کے پڑھے لکھے علماء ہیں ان کو بٹھائیں، چونکہ دجال کا موضوع بڑا زبردست موضوع ہے اور انسان کے ذہن کو کھولنے کے لیے ہم جو تصور رکھتے ہیں نا دجال کا، وہ تصور جو احادیث میں تشبیہات کے طور پر بیان کیا گیا ہے، اور عام طور پر لوگ الفاظ کو دیکھتے ہیں، پیچھے مفہوم کو نہیں دیکھتے، اس میں تھوڑا سا ہمارا نقطہ نظر اس سے تھوڑا سا مختلف ہے۔ شخص ہے کوئی، دجال شخص نہیں ہے۔ اچھا، دجال پہلی بات یہ ہے کہ ایک فرہنگ، ایک کلچر ہے۔ دجال ایک نظریہ ہے، نظریہ حیات ہے، چونکہ اس میں کہا گیا ایک آنکھ، ایک آنکھ کا ہونا کون سا بڑا کمال کی بات ہے؟ نہیں ہوتی، نہیں عام طور پہ نہیں ہوتی نا، کمال کی بات نہیں ہے نا، وہ کمال کی بات نہیں ہے۔ ایک آنکھ کا جو مفہوم ہم لیتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ صرف دنیاوی نقطہ نظر سے ان کا جو نظریہ حیات ہے وہ صرف دنیائی ہے، اخروی نہیں ہے، اس لیے یہ صرف ایک آنکھ کی بات اشارے کے طور پر کی گئی ہے۔ پھر اس کی خواہش یہ ہوتی ہے، مثلا ایک اور اس کی علامت بیان کی گئی ہے کہ اس کی خوراک جو ہے ایک پہاڑ جتنی اس کی ایک وقت کی خوراک ہے۔ جنت جہنم بانٹے گا۔ آج کی دنیا میں اگر آپ اس
सरमायादाराना निज़ाम के नतीजे में वजूद में आने वाले कल्चर को आप देखें तो उस कल्चर में जो जो चीज़ें बन रही हैं और इंसानों को गुमराह करने का सबब हैं, उन तमाम चीज़ों पर आप गौर करें, ये वही दज्जाली कल्चर है और दज्जाली नज़रिए के फ़रोग़ का ज़रिया है। अच्छा। यानी दज्जाल फ़र्द नहीं है, दज्जाल कल्चर है। दज्जाल ठीक है। एक शख्स नहीं है, दज्जाल एक नजरिया है और उस नजरिए का नुमाइंदा आज का सरमायादाराना निज़ाम है। अच्छा। जो तमाम आलमे इंसानियत को हड़प करने के दर पे है ठीक है, और ठीक है। उसकी जद पर सही। मसीहियत भी सही। है, यहूदियत भी है और इस्लाम भी है और मजलूम इंसानियत भी सही है। है। जब आप इस दज्जाली नजरिए हयात का मुताला करते हैं तो आप देखते हैं कि हत्ता क्रिश्चियंस भी उसके जुल्म के चक्की तले पिस रहे हैं और आम यहूदी भी पिस रहा है। सहयूनियों की बात नहीं कर रहा। ठीक है, मैं क्रिश्चियन भाई से पूछ लेता हूँ। पिस रहा है। मैं इस क्या, क्योंकि मनोज चौहान की तरफ मुझे आना है और मैंने बहुत ही सीरियस सवाल पूछना है, मगर इस बात को रिलेट करते हैं, खाली दज्जाल शख्स है, एंटी क्राइस्ट या निज़ाम है, इस बात से इत्तेफाक करते हैं जो अल्लामा साहब कह रहे हैं? देखिए, अल्लामा साहब ने जो बात की है वो अपने नुक्ता नज़र से ठीक कह रहे हैं, लेकिन एंटी क्राइस्ट का एक वजूद है और बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि वो ज़मीन का खुदा है, झूठा खुदा, झूठा खुदा जिसे कह सकते हैं। और आज के दौर में भी बहुत सारे आपको पता है कि खुदा हैं जो इंसान ने अपने तौर पर, दौलत भी एक खुदा है, ठीक है, हमारी जो ख्वाहिशें हैं ये भी ये नहीं कि वो खुदा का दर्जा रखती हैं, लेकिन जब उसका दौर होगा तो फिर एक ही सिक्का होगा। अच्छा, ठीक है, डॉलर नहीं, डॉलर की बात नहीं कर रहा, मतलब कि एक 666 का दौर जिसे कहते हैं, जिसे एंटी क्राइस्ट का दौर कहते हैं। अच्छा, और वो हर शख्स जो उसे कबूल कर लेगा, क्योंकि आपको पता है कि आज के दौर में बहुत सारी ऐसी ऑफर्स हैं जो हमारे मज़हब के मुताबिक तो नहीं होती, लेकिन वो हमें ललचाने के लिए, हमारी मजबूरियों का फ़ायदा उठाने के लिए वो ऑफ़र्स दी जाती हैं। और आज के दौर में क्योंकि हम लोग सब पढ़े लिखे हैं और इस बात को समझते हैं कि वो ऑफ़र जो हैं वो हमारे मज़हब से रिलेटेड नहीं होती, लेकिन फिर भी हम उन ऑफ़र्स को ले लेते हैं। ये दज्जाली निज़ाम है आप कह रहे हैं? जी जी। अब क्योंकि उस दौर में एक चिप सिस्टम जो है अभी आप देख रहे हैं कि वो चिप का एक सिलसिला शुरू कर रहे हैं, तो वो एक्चुअली इंसानों को जो है एक ही तर्ज़ ज़िंदगी में लाने का एक सिलसिला जो है वो दज्जाल या एंटी क्राइस्ट के दौर में शुरू होगा और उसका एक कोड होगा जिसे 666 कहते हैं। अच्छा, 666 का दौर जो है शुरू होगा और जो उसको कबूल कर लेगा वो कहीं से ख़रीदारी भी कर सकेगा, लेन देन भी कर सकेगा, लेकिन जो उसे नहीं कबूल करेगा उस पर जुल्म किया जाएगा। हो। और कलाम खुदा में लिखा हुआ है कि उसमें गरीब, अमीर, दौलतमंद सब जो हैं वो उसके गुलाम बन जाएंगे, उस सिस्टम का हिस्सा, और उस सिस्टम का हिस्सा बन जाएंगे, और जो नहीं बनेगा वो उस पर जुल्म करेंगे। अच्छा, ठीक है, बड़ा जुल्म है ये तो। बात तो वहीं पर पहुंची, बात वहीं आ रही है करीब। मैं डर रहा हूँ विश्व साहब, मुझे डर लग रहा है 666 कब आएगा, इससे कोई बचने की, निजात का रास्ता भी होगा? देखिए, निजात का रास्ता तो यही है कि जब सब कुछ तबाह हो जाएगा तो फिर एक निजात का सिलसिला जो है, सब जिसमें तबाही हो जाएगा, फिर केड़ी निजात है जी? नहीं पहले तबाह नहीं हो रहा था, सब कुछ तबाह हो जाएगा। हाँ, तो बाई के बाद जो है एक नई जिंदगी का आगाज है, सही है, जिसे हम सेकंड जो है लाइफ कहते हैं। ठीक है। और वो लाइफ टाइम होगी, मैं अब, क्योंकि जब मौत खत्म हो जाएगी तो फिर जिंदगी ही होगी। जिंदगी है, ठीक है, ये तो फिर हयात है, फिर तो खालिदीन वाली मौत हयात का है। खात्मा हो जाएगा। ठीक है, मैं अब वफ़े की तरफ जा रहा हूँ। मैंने मनोज चौहान साहब से खास सवाल पूछना है, दज्जाल का जिक्र सनातन धर्म में है या नहीं है? फरिश्तों की क्या हैसियत है या नहीं है? और जिन्नात की? मैं लौट कर आऊँगा, अलिफ लाम मीम में आपका इंतजार रहेगा। अलिफ लाम मीम में खुशामदीद। इस्लाम है और साथ साथ मसीही बिरादरान और हमारे हिंदू भाई और साथ में सिख। पाकिस्तान है, इसी को तो पाकिस्तान कहते हैं और ये जिना का पाकिस्तान है। हम क़यामत की बात कर रहे हैं, इत्तेफाक और इख्तलाफ दोनों यहाँ पर वेलकम किए जाते हैं। और यहाँ पर जब वेलकम की बात हुई, सरदार अमर सिंह को वेलकम कहता हूँ। इस वक्त सिख कम्युनिटी की नुमाइंदगी कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, सिखों के हवाले से मुतहरक रहते हैं। मैं मनोज चौहान साहब के पास आना चाहता हूँ और ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या कॉन्सेप्ट है दज्जाल का? यानी आप बता चुके हैं कल की आएंगे और वो एक ऐसे पेशवा होंगे कि लोगों को वहदानियत की तरफ लेकर आएंगे, रहनुमा होंगे, निजात का वाहिद रास्ता होंगे, मगर उनका मुकाबला किसी विलन से होगा जिसका नाम एंटी क्राइस्ट या दज्जाल है। बड़ी देर की मेहरबान आते आते बहुत शुक्रिया, मशकूर व ममनून हूँ GTV का
अवैज़ रब्बानी साहब आपका, महबूब साहब का, कि गाहे बगाहे मुझे इनवाइट करते रहते हैं। और श्रीमद् भगवत गीता में 18वां अध्याय जो वर्सेस है लास्ट, उसमें कहा गया है कि नमे पार्स्ता अस्ति कर्तव्यम त्रिषु योगेशनम किंचनम नान वात्यत्य वतत्यम वर्त एव चक्रमणि। इस संसार को कर्मों और गुणों के आधार पर मैंने रच तो दिया, लेकिन इस संसार का कर्म फल मैंने कभी नहीं चाहा, इसीलिए करता होते हुए भी मैं करता हूं, और जो श्रेष्ठ ये समझे वही श्रेष्ठ प्रज्ञ है। कलयुग बिल्कुल आएगा, और कलयुग के 5,000-5,500 साल गुजर चुके हैं, क्योंकि जो लास्ट एरा था वही कलयुग था। सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग और कलयुग। और जब तमाम को कैलकुलेट किया जाए तो आप देखें फिगर आता है, और ब्रह्मा जी का एक दिन 1000 चतुर्योगी के बराबर है, और वही कलयुग का पहला सेटबैक है। 2 स्टेप में कलयुग आएगा, एक है कलयुग और दूसरा है घोर कलयुग। अच्छा। घोर कलयुग जब आएगा तो उम्र कम होती जाएगी, 20 ईयर्स हो जाएगी, 16 साल में बाल सफेद हो जाएंगे, और 8 साल से 10 साल की उम्र में लड़की मां बन जाएगी। कलयुग के आसार हैं सारे ये, ठीक है। दज्जाल का हमारे यहाँ तस्वुर नहीं, लेकिन जितने भी कंस आ गया, रावण आ गया, जितने भी लोग थे ये दज्जाली थे, क्योंकि कहा गया है कि परित्राणाय साधु नाम विनाशाय दुष्कृताम धर्म संस्था अपनार्थाय संभवामि युगे युगे, में हर युग में आता रहूंगा। लेकिन जो मूर्ख लोग हैं वो कहेंगे कि ये जन्म लिया है, ईश्वर तो कभी जन्म लेता ही नहीं है, वो तो अजन्मा है। वाह वाह, वो तो आपकी सोच है कि उसने जन्म लिया, कृष्ण ने जन्म लिया। कृष्ण ने कहा लास्ट जो पैराग्राफ में कहा कि हे मात, हे पारत, हे इंसानों, ये मैं तुझसे कह रहा हूं कि समाज तेरी कर्म भूमि है, और तू अपनी कर्म भूमि के मानबन से नापा जाएगा। इसीलिए तू कर्मों से भागने का जतन न कर, क्योंकि तेरा निष्काम कर्म ही तेरा कर्तव्य है, और तेरा कर्तव्य ही तेरा धर्म। लेकिन ये धर्म तेरे केवल तेरे हित के लिए, तो वो धर्म पाप की ओर जाने वाला मार्ग। आपको याद होगा से मुक्त कर, समाज कल्याण के लिए कर्म कर, कि यही मोक्ष का मार्ग है। दज्जाल के जो तस्वुर है हमारे यहाँ, मैंने आपको बताया जो कल की अवतार है, वो जितने भी दज्जाल इस वक्त उस कंट्री में, ब्रह्मांड में होंगे, उसका वो नाश करेगा। ये आप यूं समझे कि ये जो 4 जो दौर हैं, सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग और कलयुग, ये एक सेगमेंट बनता है। अच्छा। जो बनता है 43,20,000 का, और ब्रह्मा का एक दिन है, और इतनी ही उसकी रात भी है। दिन में वो सर्जन करते हैं, क्रिएट करते हैं ब्रह्मांड को, और रात में वो परले ले आता है। विनाश है, लेकिन विनाश कर देते हैं। और ये विनाश का यूं समझे सनातन धर्म का ये 22वां एरा है, और 23वां इसके खत्म होने के बाद टोटल कितने आपने कहा? 22वां एरा ये। नहीं, टोटल कितने हैं? हाँ, मैं आपको बता दूं 3.11 ट्रिलियन ब्रह्मा जी का पूरा जन्म है पूरा। सरदार अमर सिंह साहब हैं, सबसे पहले आपको वेलकम भी कहूँ, और ये सवाल जानना चाहता हूँ, तमाम ही मज़ाहिब इस बात पे इत्तेफाक करते हैं क़यामत आएगी। सिखिज़म में क़यामत का कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे आएगी, किन लोगों का आना ज़रूरी है, कुछ निशानियाँ, कोई पेशन गोई है, क्या ये है? सबसे पहले तो अवैज़ ज़ोबानी साहब आपका शुक्रिया अदा, आपने इस मंच पे हमें याद किया, और हर बार आप करते रहते हैं। जी मैं एक चीज़ ज़रूर बताता चलूँ, सिख इज़म के अंदर क़यामत की रात का बिल्कुल कॉन्सेप्ट है, और इस चीज़ के ऊपर यानी देखें हमारे यानी 10वें गुरु गोबिंद सिंह महाराज, ठीक है ना, वो भी एक क़यामत की रात थी। जिन लोगों ने अपने यानी 10वें गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने जो है यानी अपने बच्चों को शहीद किया, वो भी एक रात थी, क़यामत की कड़ी इसके साथ जुड़ी हुई थी। और यानी कल युग के अंदर जो हमारा समय चल रहा है, कल युग, ये कल युग के अंदर यानी सिखी इज़म को जो है यानी बड़ी यानी तेज़ी से शहादत प्राप्त करके, और कल युग के अंदर जो है हमारे पहले गुरु नानक देव महाराज ने अवतार लेके और सिखों को जो है यानी इस कल युग से जो है यानी वो करके, और एक अच्छी राह, एक अच्छी मत और एक अच्छे प्लेटफार्म के ऊपर एक सिख धर्म को जो है यानी आज़ाद किया, और इस सिख धर्म के बारे में जो लोग ने अपनी रचना रचाई। तो ये भी एक कल युग के जो है यानी हिस्से के अंदर, और क़यामत की एक बहुत बड़ी वो है। और क़यामत जो है यानी सिखी इज़म के ऊपर जो अगर हम देखा जाए, हमारे पहले गुरु नानक देव महाराज का भी यानी यही फरमान था, और उसके बाद हमारे 10वें अवतार गुरु गोबिंद सिंह महाराज, क्योंकि हमारे गुरु के बाद जो है यानी 10वें गुरु जो रहे वो गुरु गोबिंद सिंह महाराज, उन लोग ने खालसा पंथ की बुनियाद रखी इसी कल युग के अंदर, खालसा पंथ की बुनियाद रखी, और ये सिख धर्म जो है यानी उन्हें जो है सौंपा गया, ठीक है। जब सौंपा गया ये सिख धर्म, और ये भी एक कल युग का समय था, और कल युग यानी कॉन्सेप्ट ये रखता है सिख धर्म के अंदर, क्योंकि क़यामत तो एक ऐसी आएगी, पूरा यानी पूरी कायनात जो है यानी नाश हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। फिर उसके बाद यानी ऊपर वाले अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह की तरफ से एक नया उपघाटन, एक नया जीवन एक प्रकट होगा, ठीक है ना। वो क़यामत की रात यानी ख़त्म होके एक नया जीवन एक प्रबंध होगा,
ایک सरदार नया साहब एक प्रबंध। सवाल यहाँ पर है, देखिए ना, इंसानियत की रहनुमाई के लिए उसने हमेशा कोई ना कोई भेजा है। बिल्कुल। मनोज साहब ने फरमाया कि वो अवतार लेते आया। इसी तरह क्रिश्चियनिटी को आप देखें, पैगंबर आए हैं, वो इस बात को बिल्कुल, तस्लीम बिल्कुल करते हैं। आए हैं। इस्लाम तो इस बात का सबसे बड़ा पैरोकार है कि जी पैगंबर होते हैं, हर हादी होता है। तो क्या सिखिज्म में क़यामत से पहले कोई हादी आएगा, कोई रहनुमा आएगा, या फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की इत्तिबा करेंगे, इमाम मेहदी की इत्तिबा करेंगे? नहीं, क़यामत से पहले जो है यानी बिल्कुल यानी पैगंबर आएंगे, और जो है यानी जिस तरीके से यानी आप यानी ये एग्जाम्पल लगा ले, यानी रूहानी यानी एक जिस्मानी यानी एक पेशमा बन के वो एक आएंगे, ठीक है ना, और इस चीज़ को जो है बिल्कुल वो करेंगे। और यानी जैसे आप देखें ना, यानी क़यामत की जो है यानी बिल्कुल वो जो चीज़ है उसके ऊपर यानी ये बिल्कुल एक क़यामत की कड़ी है, जिसके अंदर यानी एक क़यामत की रात आई जिसमें यानी एक छोटे छोटे बच्चों को ज़बह किया गया, उनकी अच्छा, इस तरह कुर्बानियाँ की दी क़यामतें गई। तो ज़ाहिर है हर बिल्कुल। तबके में हाँ, गुजरी हैं। मुफ्ती साहब आपकी तरफ आता हूँ और अख्ताम की तरफ लेके जाना चाहता हूँ। सिखिज्म के हवाले से बात हो रही है क्रिश्चियनिटी और हिंदू धर्म में। अच्छा, ये बात बहुत से लोगों को पता नहीं, इस पर ज़रा आप रोशनी डाल दीजिएगा कि जो क़यामत है वो सूर फूंकने वाला जो फ़लसफ़ा है वो दरअसल है क्या, और उसके बाद क्या होगा? देखिए, गुजारिश ये है कि जब हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम और इमाम महदी ये दुनिया से तशरीफ़ ले जाएंगे बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में, तो आहिस्ता आहिस्ता लोग कुफ्र की तरफ लौटेंगे, यहाँ तक कि पूरी रूए ज़मीन पर कोई एक आदमी परवरदिगार का नाम लेने वाला बाकी नहीं रहेगा। अच्छा, दुनिया जुल्म से भर जाएगी, अल्लाहु अकबर। और जब दुनिया जुल्म से भर जाएगी तो फिर उस वक्त परवरदिगार हुक्म देगा सूर फूकने का, तो सूर फूका जाएगा और उसकी आवाज़, लोग अपने काम काज में मशगूल होंगे सुबह दम, उसकी आवाज़ शुरू में वो बड़ी सुरीली होगी और आहिस्ता आहिस्ता वो बढ़ती चली जाएगी, यहाँ तक कि हर आदमी जो है वो अपनी जगह पर ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये ज़मीन, ये आसमान, ये चाँद, ये सितारे, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। सब, जैसे मैंने पहले गुजारिश की, जब सब ख़त्म हो जाएगा तो फिर मलकुल मौत वो भी ख़त्म हो जाएंगे, हर चीज़ ख़त्म हो जाएगी। फिर परवरदिगार जब चाहेगा फिर लोगों को ज़िंदा करेगा। और ये बात ज़हन नशीन रहे कि सबसे पहले पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाएंगे, और फिर हर उनके बाद लोग दर्जा बदर्जा तशरीफ़ लाएंगे, और फिर क़यामत का दिन कायम होगा, वो यौम हिसाब होगा। और उस वक्त भी लोग उस वक्त परेशानी के आलम में अंबिया के पास जाएंगे, हज़रत आदम के पास जाएंगे, तो हज़रत आदम उनसे ये कहेंगे कि जनाब किसी और की तरफ पलटो। फिर कहेंगे दूसरे अंबिया के पास जाएंगे, यहाँ तक कि हज़रत ईसा के पास पहुँचेंगे, तो जनाब ईसा ये कहेंगे, वही ईसा जिन्होंने अपने ज़माने में कहा था वो मुबश्शिरम बिरसूल याती मिन बादी इस्मुहु अहमद, वो ईसा जिन्होंने इंजील बरनबास के मुताबिक ये कहा था कि काश मुझे आखिरी पैगम्बर का ज़माना मिल जाए और मैं उनके तस्मे बांधने वाला बन जाऊं। ये बड़ी सआदत की बात है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पैगम्बर खुदा हैं, और मुसलमान उनकी इज्जत, उनकी ताज़ीम, उनकी तकरीम को लाजिम और हमारा मुस्तकबिल है। और वो जो दुनिया में खुशखबरी दे रहे हैं वहाँ पे भी लोगों को वही खुशखबरी देंगे। एक दर है और वो ज़हरा के बाबा का दर है, वहाँ जाओ और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे अना लहा, और लोगों की शफात करेंगे। शुक्रिया कहना चाहता हूँ मुफ्ती नवीद अब्बासी को, शुक्रिया कहना चाहता हूँ बिशम खातिब भुट्टो को, सरदार अमर सिंह को, मनोज चौहान साहब को। ख़वातीन हज़रात, हमेशा यही होता है कि इस गुफ्तगू में इतनी ज़्यादा मिठास होती है, मेरी चीनी कम पड़ जाती है, मेरे पास वक्त नहीं रहता कि मैं आपसे ज़्यादा गुफ्तगू कर सकूँ। बस ये कहना चाहता हूँ इस प्रोग्राम से जुड़ जाएं। ये जो हर जुमे को अलिफ लाम मीम आपके सामने नशर कर रहा है, ये इरादा और अज़म है कि आपको मुस्तकबिल से करीब करता जाए। ऐसा ना हो कि मुस्तकबिल आपके ऊपर आन पड़े। अपना ख्याल रखेंगे, आप अपने से बढ़ के ख्याल रखेंगे मुल्क पाकिस्तान का, अल्लाह के फरमान का। वैस रब्बानी को दीजिएगा इजाज़त।